Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cattle Idea practice series, right? Let's start with today's set. And before we begin, an important announcement. Snap Batch is going to start from the 25th of July, right? So you can find all the details in the description. So if you want to enroll, go to our website and find all the details regarding to this batch, right? Let's start with today's set. First, try the set yourself, then proceed on with the rest of the solution, right? Now let's begin with this set. So क्या बोलता है ये? The high-low game, right? So they basically a game, a high-low game. The high-low game is a four-player game played in 6 rounds, right? In every round, each player chooses to bid high or low, right? So a person can either choose a high or a low. The bids are made simultaneously, right? मतलब चारों लोग एक साथ bid करते हैं within a round. If all four bid high, then all four lose 1 point. If three players bid high, one bids low, then the players bidding high gain 1 point each, and the player bidding low loses 3 points. If two players bid high and two bid low, then the players bidding high gain 2 points each, and the players bidding low lose 2 points each. So there are basically multiple scenarios mentioned according to how many people choose high and how many people choose low, and accordingly the points will be distributed. Right, so read that again. So basically, there are 6 rounds, right? Four players A, B, C, D played the high-low game. The following facts are known about the game. At the end of the 3 rounds, Arun had scored 3 points, Deepak had scored 2 points, Bankim and Charu had scored -2 points each. तो बेसिकली हमें फिगर आउट करना पड़ेगा राउंड 1 2 3 में कितने कितने पॉइंट्स थे. अब यूनिकली आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट येस वी हैव टू like adjust values according to this 6, according to this 2, and according to these -2. At the end of the 6 rounds, Arun had scored 7, Bangim and Deepak had scored -1 point each, and Charu had scored -5 points each. तो 3 rounds के end में दिया हुआ है, and उसके बाद फिर directly हमारा 6 rounds के end में दिया है, and we have some more additional information in the third and fourth point. Now let's start by writing all the possibilities from the game, right? So first let's do that. So पहला केस क्या था? If all four bid high, right? So अगर 4 बार H आया, I'll just simply write H for high, right? If all four bid high, then all four lose 1 point each. तो सबका क्या हो जाएगा? -1, -1, -1, -1. That is the first scenario. If three players bid high, तीन का H आता है, and one bids low, एक low bid करता है. Then the players bidding high gain 1 point each, and the player bidding low loses 3 points. तो इन सबका क्या हो जाएगा? +1, +1, +1, and low bid करने वाले का कितना मिलेगा? -3 points. If two players bid high, third possibility, if two players bid high and the remaining two bid low, then the players bidding high gain 2 points each. तो इन दोनों सिनारियो में इसको 2 points मिलेंगे, and the players bidding low lose 2 points each. तो -2 and -2. Then if one player bids high, अगर एक बार H आया and 3 times तुम्हारा क्या आया? L आया, then the player bidding high gains 3 points. इस सिनेरियो में इसको 3 points मिलेंगे, and the players bidding low lose 1 point each. So -1, -1, and -1. So the final possibility should be all four L, right? वही लिखा होगा. If all the four bid low, then all four gain 1 point each. So if all of them bid low, then all of them actually gain 1 point each. Right, so that is the initial scenario mentioned to us. Now, next, moving on, four players A, B, C, D played the high-low game, right? So A, B, C, and D. So round 1, round 2, round 3. Round 3 के end में we know the points, right? Round 3 के end में we know the points. And कितना था? At the end of the 3 rounds, Arun had scored 6 points. So Arun का 6 points. Deepak had scored 2 points. And Bankim and Charu had scored -2 each. तो दोनों का -2, -2 था. Then would have come the fourth, fifth, and sixth rounds. Fourth, fifth, and sixth round. And at the end of the sixth round, Arun had scored 7 points. Bankim and Deepak had scored -1 each. So iska bhi -1 and Deepak ka bhi -1. And finally, about Charu, Charu had scored -5 points. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ना यहाँ पे फोकस करते हैं फर्स्ट 3 राउंड्स का नंबर ब्रेक करने में, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 राउंड्स, राइट? सो पहले अपना ट्राई करेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड्स में नंबर्स फिगर आउट करने का कि किसने क्या बिड कर रखा होगा, एंड अकॉर्डिंगली 6 कैसे बनेगा. सो अभी तक तो तुम्हारे पास सिर्फ इन पॉइंट्स के अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस थर्ड एंड फोर्थ. सो उनको पढ़ लेते हैं.
Deepak's score in the third round was less than his score in the first round, but was more than his score in the second round. So दीपक के तीन वैल्यूज आने वाले हैं, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में. सो दीपक के लिए कंडीशन क्या मेंशन्ड है? हिज स्कोर इन द थर्ड राउंड वाज लेस देन द फर्स्ट. तो थर्ड वाले में आपका लेस होगा फर्स्ट राउंड से, बट वाज मोर देन हिज स्कोर इन द सेकंड राउंड. तो थर्ड वाला हमारा 2 से बड़ा होगा. क्लियर? ये सिनेरियो है अपने पास. Then, in exactly 2 out of the 6 rounds, Arun was the only player to bid high. Now, only player to bid high वाला अगर आप कंडीशन चेक करो, only player to bid high is this case. तो ये क्या कहता है? In exactly 2 out of the 6 rounds, 6 rounds में अरुण was the only player to bid high. Now, whenever he is the only player to bid high, तो क्या होता है? उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी तीन लोग को -1 ईच मिलता है. नाउ अब आपको ना ऐसे सोचना चाहिए कि 2 बार उसका ये सिनेरियो बनने वाला है, 2 बार उसका अकेला 3 आने वाला है, राइट? तो अगर उसका 2 बार अकेला 3 आने वाला है, राइट, तो वो कहाँ पे आएगा आपका? जैसे नोटिस करो, फर्स्ट 3 राउंड्स का टोटल सब 6 है. उसके बाद एक्चुअली में अगर नोटिस करोगे तो 6 के बाद ओवरऑल आपका 7 बना है नेक्स्ट 3 राउंड्स मिला के. तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है. नाउ थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज. वो डबल 3 वाला जो है, 2 बार 3 आने का, क्या वो दोनों 3 मेरा यहाँ आ सकता है फर्स्ट राउंड में ही, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 3 राउंड्स? नहीं, क्योंकि अगर 3 में 2 जगह उसका 3 आ गया तो वो अकेला 6 बना देगा. सो फिर आपके पास तो थर्ड राउंड में उसको 0 मिलना पड़ेगा, मतलब किसी एक राउंड में 0 मिलना पड़ेगा. 3-3-0 करके आपका 6 बनेगा. बट इस गेम में कभी भी 0 नहीं मिलता है. सो दोनों ही 3 तुम्हारे पहले 3 राउंड्स में तो नहीं आएंगे. दोनों 3 तुम्हारे इधर भी नहीं आ सकते, और फॉर ऑब्वियस रीजन 6 के बाद 7 ही बनना है. अगर 2 में तुम 3 बना दिए और तुम्हारा ओवरऑल 1 का इंक्रीज होना है, तो 6 से 1 के इंक्रीज पे आने में 5 का डिक्रीज होना चाहिए. इस गेम में कभी -5 तो तुम्हें दिख नहीं रहा. सो दोनों पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई कि दोनों 3 ना ही यहाँ हो सकते हैं, ना ही दोनों 3 यहाँ हो सकते हैं. सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट विद अस इज एक 3 तुम्हारा यहाँ पे आ जाए विद इन द फर्स्ट 3 राउंड्स, और एक 3 तुम्हारा यहाँ पे आ जाए विद इन द नेक्स्ट 3 राउंड्स. अब समझो, अभी यहाँ पे हमें ये नहीं पता ना कि कहाँ पे वो दो एक सिंगल 3 आने वाला है. तो इसको छोड़ के ना पहले हम साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, राइट? और हम ये बोल रहे हैं कि उसका एक बार जहाँ पे भी 3 आएगा, जब उसने एच बिट कर रखा होगा, तो उस सिनेरियो में होगा क्या? बाकी जो तीनों लोग हैं वो -1 -1 -1 बिट करेंगे, राइट? वेरी क्लियर, राइट? तीनों लोग हमारा -1 बिट करने वाले हैं. नाउ अरुण पे ही अभी अगर और सोचना स्टार्ट करें, तो अरुण का 6 बनना है. एक बार ही 3 आएगा, अब और कोई 3 है तो आ नहीं सकता. तो मतलब बचे हुए 2 राउंड्स में ओवरऑल उसका इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए? 3 का होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल 6 बनाना है. अब 3 तुम्हारा कैसे बनेगा? 3 तुम यूज कर नहीं सकते, राइट? सो मैक्सिमम आप वैल्यू अगर यूज कर सकते हो आप, तो 2 यूज कर सकते हो, राइट? तो 3 को एक अगर हम एक पॉसिबिलिटी देखें तोड़ने की, सो इट कुड बी अ व्हाट, 2 and 1, राइट? इट कुड डेफिनेटली बी अ 2 and 1. इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, राइट? इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है 3 का ओवरऑल इंक्रीमेंट करने का, 2 और 1 के अलावा, राइट? क्योंकि हम 3 यूज कर नहीं सकते, राइट? तो 3 से नीचे अगर हम 2 करें तो 2 के साथ क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. और कोई पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है. सो अरुण का ए का डेफिनेटली एक राउंड ऐसा होगा जिसमें उसको 2 पॉइंट मिले होंगे, एक राउंड ऐसा होगा जिसमें उसको 1 पॉइंट मिला होगा, राइट? अब सोचना स्टार्ट करें, जैसे ये 2 पॉइंट का जो केस है, 2 पॉइंट वाला जो केस है, उसमें हमें यही वाला सिनेरियो बनते हुए दिखेगा, क्योंकि और ऐसा कोई आपका राउंड नहीं है और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें आपका 2 पॉइंट्स का भी मिलता है. तो 2 पॉइंट्स वाला ये केस है. तो 2 पॉइंट्स वाला अगर ये केस है, तो हम डेफिनेटली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 प्लेयर होंगे जिनको 2 मिले होंगे, +2 मिले, और 2 प्लेयर होंगे जिनको -2 और -2 मिले होंगे. ठीक है, अभी मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना बोल पा रहा हूँ कि चलो ये अरुण है, बट आई एम राइट नाउ नॉट सेइंग कि दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये ध्यान रखना, ठीक है? सिर्फ ये ए है. बाकी बिकॉज फर्क नहीं है ना, बाकी जो भी तीन लोग होंगे किसी भी ऑर्डर में होंगे, सबको तो -1 ही मिलेगा. हाँ, यहाँ पे फर्क पड़ रहा होगा, तो अभी हमने नाम डिसाइड करा ही नहीं है, अभी हम नाम देख लेंगे एलोकेट. बट इसको अगर 2 मिला है तो डेफिनेटली दो लोग को डबल 2 मिला होगा, ठीक है? तो एक 2 इसको मिल गया, तो एक 2 डेफिनेटली किसी -1 वाले को ही मिलेगा, बिकॉज सबको -1 था एक राउंड में. सो किसी एक पर्सन को जिसको -1 मिला था उसको एक +2 मिल जाएगा, बाकी दोनों -1 वाले को -2 ईच मिल जाएगा. सो यहाँ तक हो गया. अब आपको बस ये सोचना है कि ये 1 के साथ ये तीनों लोगों को क्या मिलेगा. अब ये कैसे डिसाइड करोगे?
बिकॉज वन आपका इस वाले पॉसिबिलिटी में भी दिख रहा है बनते हुए और इस वाले पॉसिबिलिटी में भी बनता हुआ दिख रहा है। आप चेक कर सकते हो एक्चुअली में कि कौन सा सिनेरियो आपका बनने वाला है, राइट। जैसे अगर मान लो आपका ये वाला सिनेरियो ट्रिपल वन और -3, ट्रिपल वन और -3 का क्या मतलब हुआ, इसको वन आपने दे दिया तो इन तीन में से दो लोगों को दो बार और वन मिलेगा और एक को क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, राइट। अब क्या -3 किसी को मिल सकता है, एक बार हम जरा चेक करके देखें। मान लो हमने किसी को -3 दिया, अगर हम इस वाले को -3 देते हैं, सपोज इस वाले को अगर हम -3 देते हैं, ठीक है, तो इसका ओवरऑल पॉइंट कितना हो जाएगा, -2। तुम्हारा इसमें -2 दिख रहा है, यस दैट इज फाइन। एक बार आपका मान लो इसमें आपने -3 दिया तो ये -2 दिख रहा है। अच्छा, क्या हम इधर -2 दे सकते थे, नो, द आंसर वुड बी नो। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर -2 देंगे कहीं पे भी, सॉरी -3 देंगे तो -3 -2 -1 से -6 हो जाएगा, बट इनमें से किसी का भी -6 तो है नहीं। तो अगर लेट से ये वाला पॉसिबिलिटी बनना भी है तो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा और यहाँ बाकी दोनों लोगों को वन और वन मिलेगा। तो इसका -4 + 2 से चलो -2 बन गया, इसका 6 बना रहा। इनका अगर पॉइंट देखोगे तो इसका -2 हो जाएगा और इसका भी देखोगे तो -2 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका ऐसा सिनेरियो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो एक पर्सन का 6 है, चलो वो तो ए था, एक का आपका +2 भी आना चाहिए और दो लोगों का -2 आना चाहिए, तीन लोगों का -2 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये वन के साथ जो हम केस बना रहे थे वो ये वाला केस नहीं बनेगा, बिकॉज फिर किसी को -3 दोगे तो यही वाला सिनेरियो आपका बनना पड़ेगा। हेंस दिस केस गेट्स एलिमिनेटेड, ये वाला केस तो नहीं बनने वाला है। तो अगर ये वाला केस नहीं बनने वाला है, इसका मतलब वन के साथ फिर आपकी यही वाली पॉसिबिलिटी रह जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वन के साथ ये वाला केस अगर नहीं बन पा रहा है और +1 कभी और है ही नहीं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपका सीधे +1 आने की ये वाली थी। सो अब एक्चुअली में अब हमें फर्क नहीं पड़ेगा, चारों लोगों को क्या मिलने वाला है आपका, 1 1 1 ईच, राइट। एंड नाउ यूल नोटिस यहाँ टोटल पॉइंट 6 है, इस जो भी पर्सन है इसके टोटल पॉइंट देखोगे तो 3 -1 से +2 है, इसका टोटल पॉइंट देखोगे तो -1 -2 +1 से ये दोनों कड़े आएगा और ये क्या आएगा, -2, एंड सेम विल बी अप्लाइड टू दिस एज वेल। तो 6 2 -2 -2 यही हमारे ये चार नंबर आ रहे हैं। ना हाउ डू आई डिसाइड इसमें से कौन सा पर्सन क्या है, तो थोड़ा सा सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप ये भी बोल सकते हो, ये +2 डी है ना, तो ये वाला हमारा एक्चुअली में डी होने वाला है और बाकी दोनों का -2 है, बिल्कुल आइडेंटिकल आपके पॉइंट्स हैं, सो ये हमारे बी और सी होंगे। अच्छा, ये तो चलो आपने डिसाइड कर दिया, बट आपने क्या ऑर्डर बोल पाओगे, तो उसके लिए हमारा एक्चुअली में कंडीशन दिया था, उसको पढ़ते हैं। डी के लिए क्या कंडीशन दिया था, तीनों हमारे डिस्टिंक्ट नंबर आने चाहिए, बिकॉज वन वाला सबसे बड़ा है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, इसमें इसमें और इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर अगर देखोगे तो +2 है। +2 का मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारा राउंड वन में आएगा ना, सो दिस हैज टू बी राउंड वन। तो ये सबके लिए राउंड वन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये तो साथ में मिलता है ना, ये साइमल्टेनियस पॉइंट्स है। सो ये राउंड वन आपका डिसाइड हो जाएगा। देन आपका राउंड 3 आता है, राइट। तो 2 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट हमारा क्या है, दिस राउंड। सो ये हमारा राउंड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड ऑटोमेटिकली जो हमारा लीस्ट है, लीस्ट क्या है, -1। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, राउंड 2, राइट। सो नाउ एक्चुअली आई कैन गो अहेड एंड फिट ऑल दिस इन। सो राउंड वन में हमारा ए और डी का +2 है, राउंड वन में तो +2, और डी का भी +2, बाकी दोनों का हमारा -2 -2, तो -2 एंड -2। देन राउंड टू में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ए को +3 मिल जाएगा और बाकी तीनों को -1 -1 और -1 मिला होगा। और बाकी राउंड थ्री में सबको क्या मिलने वाला है, +1 +1 +1 एंड +1। नाउ इफ यू ऑल्सो वांट वी कैन ऑल्सो राइट द हाई लो वाला पार्ट, ठीक है। जैसे +2 अगर एक बार मिला है, राइट, +2 और तीन लोग को, सॉरी डबल 2 एंड दो बार -2, तो ऑब्वियसली ये वाला सिनेरियो है। सो इसमें इसको इसने एच बिड किया होगा, इसने भी एच बिड करा होगा, ठीक है, और बाकी दोनों ने एल एंड एल बिड करा होगा। इस वाले में एक सिंगल 3 का मतलब इसने हाई बिड करा होगा और तीनों ने एल एल एंड एल बिड करा होगा। एंड सिमिलरली लास्ट वाला सिनेरियो ये वाला है, तो चारों लोगों ने एल 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 एंड एल बिड करा होगा, राइट। नाउ अब हमारे क्या हो गया, फर्स्ट 3 राउंड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ कंप्लीटली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3 राउंड्स पे, दैट इज राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6। अब इसमें ये थर्ड वाला पॉइंट तो हमारा सिर्फ इसी के लिए यूज हो गया।
अब हमारे पास एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली में बचा हुआ है, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट से हमने डिराइव करा था कि एक बार हमारा अरुण का सिंगल हाई था, मतलब राइट, ही वाज ओनली प्लेयर टू बिड हाई, एक राउंड यहाँ पे था। तो हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि आउट ऑफ द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स राउंड देयर वुड हैव बीन वन राउंड जहाँ पे अरुण वुड हैव बीन द ओनली पर्सन टू बिड अ हाई। सो ये वाला जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 3 -1 -1 -1, ये इनमें से फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड में कहीं ना कहीं एक बार तो हुआ ही होगा, राइट। नाउ अब कैसे इसमें सोचना स्टार्ट करें, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट द ओवरऑल इंक्रीमेंट। जैसे 6 से 7 हुआ है तो ओवरऑल ए का 1 बढ़ना चाहिए, इसका -2 से -1 हुआ है तो इसमें क्या हुआ, 1 बढ़ा है आपका, इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे -2 से -3 हुआ है, राइट, सॉरी -5 हुआ है, -2 से -5 हुआ है तो इसमें -3 ओवरऑल आपका इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे 2 से माइनस हुआ है, -1 हुआ है तो इसमें भी, और आप ओवरऑल नोटिस करोगे तो इसमें भी -3 का चेंज हुआ है अक्रॉस द 3 राउंड्स मिला के। नाउ एक बार अब ए के रिस्पेक्ट में अगर हम फोकस करें तो 3 -1 -1 -1 ये वाला सिनेरियो तो बन ही रहा है। नाउ ओवरऑल अगर आप ए के लिए चेक करोगे, राइट, ओवरऑल अगर ए चेक के लिए चेक करोगे तो उसका 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक ही राउंड में, अब चाहे जिस भी राउंड में, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड है, एक ही राउंड में उसका क्या हो चुका है, 3 का इंक्रीमेंट हो चुका है उसका, लेकिन फाइनली 3 राउंड्स के एंड में 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब ये जो दोनों राउंड हैं उसमें ओवरऑल उसका 2 का क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, उस राउंड में आपका ओवरऑल 2 का आपका डिक्रीज होना चाहिए। नाउ अब आपको चेक करना पड़ेगा वो 2 का डिक्रीज कैसे हो सकता है। तो जैसे क्या पॉसिबिलिटी है आपका ओवरऑल 2 का डिक्रीज करने का, हो सकता है आपका 2 बार क्या आ जाए, -1 आ जाए, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है, 3 -1 -1 -1 के साथ एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, अगर आपने एक भी जगह -1 लिया तो डायरेक्टली आपको दूसरी जगह -1 ही रखना पड़ेगा ताकि ओवरऑल आपका 1 का ही इंक्रीमेंट रहे। मान लो तुमने -1 नहीं लिया, राइट, सपोज तुमने -1 नहीं लिया, अब -2 का आपका चेंज होगा कैसे। तो लेट्स ट्राई आउट द पॉसिबिलिटी, आप -2 ले नहीं सकते बिकॉज फिर किसी राउंड में आपको 0 का चेंज होना चाहिए, बट वो तो है ही नहीं आपका, तो -2 आप नहीं ले सकते। तो -1 नहीं ले सकते, मतलब -1 लेके एक केस बन गया, -2 तुम ले नहीं सकते। -3 नहीं ले सकते, ले सकते हैं क्या -3, -3 भी बाय द वे हम हाँ ले सकते हैं ना, -3 यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो है ही, सो -3 हो सकता है। तो ओवरऑल आपका 2 का डिक्रीज करने के लिए -3 अगर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, तो एक ऐसा भी आपका राउंड आना चाहिए, ठीक है, -3 और 1 का। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 के साथ ये वाला केस बन सकता है, चेक करने पे है, उससे और नेगेटिव तो है नहीं। नाउ 0 का चेंज है नहीं, पॉजिटिव में रख सकते थे क्या आप, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रखते तो ऑटोमेटिकली -3 मिलता, वो तो यही केस हो गया। अगर हम 2 रखते और हम कह रहे हैं ओवरऑल -2 का चेंज चाहिए तो -4 करना पड़ता, 2 के साथ -4 करना पड़ता, वो तो हमारा अलाउड ही नहीं है। 3 रख नहीं सकते, राइट, 3 तो वैसे भी नहीं रख सकते। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज जिनसे आपका सिनेरियो बन सकता है, तो जरा इन दोनों को चेक करते हैं। ना सबसे पहली चीज तो मैं जो चेक करना चाहूंगा, मैं वो ये वाला केस चेक करना चाहूंगा, राइट, एक बार देख लेते हैं। बिकॉज -3 के साथ एक्चुअली में चीज़ें फिक्स है, बिकॉज अगर ए का किसी भी राउंड में -3 आ रहा है तो ये वाला सिनेरियो बनेगा और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब बाकी तीनों लोगों का 1 1 1 ईच होगा। नाउ करेंटली अगर आप नोटिस करो तो इसका हमारा ओवरऑल 1 का चेंज होगा, दिस गेट सेटिस्फाइड। इन तीनों का अगर तुम नोटिस करो, राइट, इन तीनों का नोटिस करो तो इनका 0 0 0 पे बैलेंस हो चुका होगा, ठीक है ना, दो दो राउंड मिला के 0 0 0 हो चुका होगा। लेकिन अब आपको चाहिए क्या, -1 -5 और -1 का चेंज, ये -5 का चेंज आप नहीं ला पाओगे, राइट, अंडरस्टूड। आप -5 का चेंज यहाँ पे नहीं लेके आ पाओगे क्योंकि दो राउंड में इनका बैलेंस हो चुका होगा, 0 0 0 हो चुका होगा। तो हम -5 का चेंज, सॉरी माइनस, नॉट -5, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस, सॉरी, -3 का चेंज हम ला सकते हैं, राइट, -3 का तो ला ही सकते हैं। तो मतलब एक राउंड तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जिसमें दो लोगों का तुम्हारा -3 आ जाए, तभी हो पाएगा, बिकॉज करेंटली 0 0 0 पे खड़े हैं ना ओवरऑल बैलेंस होके, राइट। और एक राउंड और होने से आपके ये फाइनल चेंजेस हो जाए, राइट, फाइनल चेंजेस आपके 1 -3 -3 हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि 0 0 पे खड़े हैं और -3 अगर दो लोगों का फाइनल चेंज होना है तो दो लोगों को आपका एक राउंड में -3 मिलना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द केसेस।
तो वो हमारा सिनेरियो नहीं बन पाएगा, हेंस दिस पॉसिबिलिटी गेट्स एलिमिनेटेड। तो विल हैव टू वर्क अराउंड दिस केस। अब इसमें ओवरऑल आपका चेंज +1 पे है, बाकी तीनों लोगों का जो चेंजेस है वो एक का +1 पे आ जाना चाहिए, दो लोगों का -3 पे आ जाना चाहिए। नाउ -1 के साथ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, -1 हमारा किस केस में बनता है, इस केस में बनता है या फिर तुम्हारा इस वाले केस में बनता है, राइट। -1 हमारा या तो इस केस से बनता है, इस केस में -1 दिखता है, या फिर तुम्हारा इस वाले केस में -1 दिखता है, राइट। नाउ इसके दोनों ही सिनेरियो में आपके -1 बन रहे हैं, राइट। इसके दोनों ही सिनेरियो में तुम्हारे -1 बन रहे हैं। सो डेफिनेटली ये वाला सिनेरियो ही बनेगा। क्यों ये वाला सिनेरियो नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, किसी दूसरे को तो 3 मिल ही सकता है ना, इसका -1 है। सो विल हैव टू चेक, राइट। ये दोनों हमारे सिनेरियो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो 2 राउंड्स में अब देखते हैं कि कौन सा हमारा सिनेरियो बनेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट चेकिंग दिस। नाउ हम किस पर्सन के अराउंड सोचना स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली में। जैसे नोटिस करो, ये जो बी पर्सन है, ये बी वाले का ओवरऑल चेंज हमारा 3 राउंड्स के बाद, इन लास्ट के 3 राउंड्स के बाद आपका पॉजिटिव चेंज हो गया, दैट इज +1 पे आ गया। नाउ करेंटली नोटिस करो, इनमें से कहीं ना कहीं कोई तो बी होगा ही ना, बिकॉज ये ए है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपका बी है। करेंटली उसका -1 है बिकॉज ऑफ दैट राउंड जिसमें ए को 3 मिला था। करेंटली वो नेगेटिव पे है और फाइनली वो हमारा क्या आ जा रहा है, +1 पे आ जा रहा है। सो हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं ना कि किसी न किसी राउंड में उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिले होंगे। और हम ये भी कह रहे हैं कि -1 के साथ या तो ये केस बनेगा या तो ये केस करेगा बनेगा। दोनों ही राउंड में ये डेफिनेटली नहीं बन सकते, ये दोनों में ही, क्योंकि उसको कभी ना कभी तो पॉजिटिव देना पड़ेगा। सो ये वाला राउंड इन्वॉल्व जरूर होगा और उसको कभी ना कभी ये 3 मिला ही होगा। हाँ, अब आपको बस ये सोचना है क्या उसको 2 बार 3 मिल जाएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इन दोनों राउंड में उसको +3 मिलेगा तो 6 -1 से 5 का चेंज होना चाहिए, बट वो 1 का चेंज है। तो बहुत सिंपल आपको क्लिक करेगा कि एक राउंड में उसको 3 मिल जाएगा, राइट। एक राउंड में उसको 3 मिल जाएगा, दूसरे राउंड में उसको -1 देना पड़ेगा, राइट। एक राउंड में उसको 3 मिलेगा और दूसरे राउंड में आपको -1 देना पड़ेगा। सो यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड फ्रॉम हियर कि एक राउंड में उसको ये वाला सिनेरियो मिल जाएगा और एक राउंड में उसको -1 यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, किसी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यही चीज 2 बार यूज हो जाए, एक बार हमारा बी को +3 मिल जाए और एक बार दूसरे पर्सन को 3 मिल जाए? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज बाकी दोनों लोगों का -3 -3 है। किसी और पर्सन का -1 में अगर +3 ऐड करोगे तो 2 पे आ जाएगा, लेकिन 2 से -3 पे जाने के लिए -5 का चेंज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हेंस वी कैन कंक्लूड कि एक बार ये सिनेरियो यूज होगा, एक बार ये सिनेरियो यूज होगा। तो लेट्स से मान लो इसी को मैं कहता हूँ कि सपोज ये हमारा क्या है, चलो उसी ऑर्डर में ही लिख देते हैं। सपोज ये हमारा डी है, ठीक है, नॉट डी, सॉरी, बी, सब ये हमारा बी है सपोज। इन दोनों का तो सेम ही रहा, चलो सी एंड डी। सो बी का हमारा +1 पे आने का मतलब किसी एक राउंड में उसको क्या मिलेगा, ये वाला 3। तो उसको जब 3 मिलेगा तो बाकी तीनों लोगों को -1 मिलने वाला है, राइट। और बाकी जो आपका ये वाला केस है, ये किसी एक राउंड में और आएगा। सो ये -1 तभी तुम नोटिस करोगे यहाँ पे उसका ओवरऑल जो चेंज होगा वो +1 का हो जाएगा। और ये जो बाकी दो लोग हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा, -3 -3, जो कि हमारा बन जाना चाहिए था। वी कैन ऑल्सो गो एंड राइट ऑल द हाई लोस, राइट। 3 एंड -1 का मतलब क्या होता है, हाई, लो, लो एंड लो। 3 एंड -1 यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ये हाई है, अब की बार ये लो, लो एंड लो। और 4 बार आपका -1 आने का मतलब क्या होता है, हाई, हाई, हाई एंड हाई। Now, the only thing we cannot actually tell in this scenario is कि ये जो 3 हमारे राउंड्स है, 1, 2 एंड 3, ये किस ऑर्डर में यहाँ पे 4th, 5th एंड 6th राउंड बनेंगे, वो हम डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बता सकते, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो कि क्या हमारे कॉम्बिनेशन बने होंगे एंड एवरीथिंग, एंड यूजिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन एक्चुअली गो ahead एंड आंसर ऑल द प्रॉब्लम्स। चलो फिर लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स। What was the bids by A, B, C, D respectively in the first round? A, B, C, D respectively in the first round. H, double L and H. High, low, low, H. Right? High, low, low, H. That is option C. Second, in how many rounds did Arun bid? H. Right? Arun का 6 rounds में कितनी बार H आया? 1, 2, 3 and 4. 4 rounds. Then in how many rounds did Bankim bid low? B का हमारा low कितनी बार आया? 1 time. एक बार यहाँ पे L है और बाकी यहाँ पे 3 बार आपका L है, राइट। सो अगेन आंसर वुड बी 4।
फोर्थ, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड ऑल द फोर प्लेयर्स मेक आइडेंटिकल बिट्स? चारों का सेम आपका कितनी बार आया? एक बार तो यहाँ है ऑल फोर एच, एंड एक बार तुम्हारा यहाँ पे आया था, दैट इज ऑल फोर एल. सो इन 2 rounds दे मेड आइडेंटिकल बिट्स. इन हाउ मेनी राउंड्स डिड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 point? कितनी बार डी को +1 मिला है? सो एक बार यहाँ पे मिला डी को +1, और यहाँ नोटिस करोगे डी को, ये तो तीनों ही नेगेटिव है, सिर्फ एक बार उसको क्या मिला है? +1. In which of the following rounds was Arun definitely the only player to bid high? Only player to bid high भाई, जो 2 बार उसको हुए थे. तो कितने राउंड्स में डेफिनेटली आप बता सकते हो? ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स, किस राउंड के लिए आप डेफिनेटली बता सकते हो ही वॉज द ओनली वन टू बिड हाई? तो नोटिस करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एग्जैक्टली बता ले गए थे, अरुण वॉज द ओनली प्लेयर टू बिड हाई वॉज इन द सेकेंड राउंड. यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हैं. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली फाइन. इसके अलावा अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, ये हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो एच और ट्रिपल एल है, ओनली प्लेयर टू बिड हाई, ये वाला जो है वो कौन सा राउंड है. इट कुड बी द फोर्थ राउंड, इट कुड बी द फिफ्थ राउंड, इट कुड बी द सिक्स राउंड. यहाँ ऑर्डर हम सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से डिसाइड कर पाए थे, ये जो दीपक का पॉइंट था. ठीक है, ये हमारा फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड के लिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, सिर्फ सम है, हम नंबर्स ब्रेक कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डेफिनेटली अरेंज देम. And hence, in which of the following rounds was Arun definitely the only player to bid high? So that has to be the second round. Right? So I hope you understood this problem. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.